Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Dipshika and you are watching Study with Dipshika. So, today in this video, I will try to help you out and I will try to tell you the strategy that how to prepare in the last 1 month for the TISNET. So, only 1 month is left for the TISNET examination, and if you are a person that have not started your preparation till now also and you are in a doubt that you can do it or not do it, you should start your preparation or not, then according to me, yes, now also you have time and you can do it. Yeah, this time is not enough, but then also if you will work hard in this 1 month, then I can say that yes, you can manage. Then the question comes, how to do it, what to do now, how to prepare. So yes, I will try to clear this in this video. But firstly, I want to clear that this video is for the one who have not started their preparation. If someone who have prepared for CAT or for other examination and then they are seeing this video, then this video may feel very basic for them. So without wasting the time, now come to the main topic, that how to prepare in this last 1 month. Okay, so if you have not started yet anything, and then firstly you should know that there are three sections. One is the static GK and the current affairs section, one is the quant section, and the other is the English section. So firstly I will suggest that firstly go and analyze and see the previous year question paper. Okay, not only see that paper, analyze that paper and then try to solve it. आई नो जब तुम्हें कुछ नहीं पता है, यू डोंट हैव एनी आइडिया, देन एकदम मन नहीं करेगा दैट कि सॉल्व करूं इस पेपर को, बट यू शुड ट्राई इट. ओके, एक क्वेश्चन करो, इफ यू कांट सॉल्व दैट देन आगे बढ़ो, एंड आई विल टेल यू दैट एकदम मन नहीं करेगा, बट यू शुड ट्राई एंड यू शुड सॉल्व वन full paper, all the three sections. After solving that paper and analyzing that paper, means the thing that will come to your mind is that what comes in all that three sections, कौन सा चैप्टर आता है, कैसा क्वेश्चंस आता है, that will be clear. So कुछ भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले you have to know that कि उसमें क्या आता है, तभी ना तुम प्रिपेयर करोगे, वरना how you will prepare. सो फर्स्टली यू एनालाइज कि कैसा क्वेश्चन आता है, देन कि हमसे क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, व्हाट इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, व्हाट इज माई वीकेस्ट. ओके, सो जो आपको लगेगा दैट इट इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, देन लीव दैट. ओके, यू कैन डू इन द लास्ट 1 week ऑल्सो, बट दैट पार्ट, बट क्या तुम्हारा वीकेस्ट है दैट यू विल ओनली नो, एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. So I want to say that everyone have different styles of studying. Okay, so choose the path you are comfortable. Means after hearing me or after means seeing other videos, don't get confused that if she was following that path, then I also should follow that path. No, everyone have their own comfort zone and own way of studying. So today I am going to share my way, or how I was studying or how I was preparing. I can only suggest you, then you can see that it will be comfortable for you or not. If it will be, then follow it. Okay, so I think you people know that for entering or for getting entry into the test, you have to clear the cutoff of the GK portion. If you have cleared the cutoff of the English and the quant portion, and if you have not cleared the cutoff of this GK portion, then sorry to say, but you will not be selected. So the main focus that you have to do is the GK. I am not saying that you should not, you don't have to focus on the grammar and quant section. You have to, but mainly I think that you should prepare for this GK, static GK and current affairs more. Now I think that you people might be thinking that yes, ये सब हमको पता है, बट कैसे करें, है ना, एक ही महीना बाकी है, कैसे करें. सो आई एम टेलिंग दैट मैं क्या करती थी कि आई वॉज फॉलोइंग द यूट्यूब चैनल. आई हैड सब्सक्राइब टू अ लॉट ऑफ static GK and current affairs channel. The two channels that I liked the most for the current affairs was Logic Pathshala and Parcham classes. या रीचा मैम परचम क्लासेस. सो आई थिंक कि वो लोग बहुत ज़्यादा बेस्ट वीडियोस बनाते हैं करंट अफेयर्स पे, स्टैटिक जीके पे. दे गिव डेली करंट अफेयर्स, देन वीकली करंट अफेयर्स, देन
मंथली करंट अफेयर्स। सो ऐसा है कि अब टाइम नहीं है तो अब मंथली तो हो ही नहीं सकता। सो आई एम सजेस्टिंग दैट आप लोग को पहले का तो कवर करना ही है, बट फ्रॉम नाउ ओनली डे टू डे आप लोग स्टार्ट करें। एटलीस्ट हर दिन वो सुबह 6 बजे आता है, या वो ऐसे भी वो वीडियो 30 या 35 मिनट्स 40 मिनट्स 1 आवर इतने की होती है, उससे ज़्यादा की नहीं होती है। सो आई थिंक कि इतना सा टाइम देना जीके को काफ़ी है। मीन्स अगर आप 2 क्लासेस 3 क्लासेस देखें, देन ऑन एडिशन टू दैट यू कैन रीड न्यूज़पेपर, यू कैन गो फॉर एप्स लाइक इन शॉर्ट, जो कि बाकी न्यूज़ आता है उसमें। ओके, बट मैं फॉलो करती थी ये 2 क्लासेस को और मैं डेली देखती थी। एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 6 मंथ एंड मैं डेली उसको देखती थी। एंड आई एम रियली सेइंग दैट वो मुझे बहुत मदद किया था। मेनी क्वेश्चंस हैव केम फ्रॉम दैट पार्ट। मीन्स हमको तो 6-7 क्वेश्चन मिले थे कि जो मैंने एकदम अच्छे से पहले पढ़ा था। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डेली पढ़े, डेली और कॉन्स्टेंटली उस पर लगे रहे तो उतना हार्ड नहीं है। बट अगेन इट इज दैट आई विल नॉट डू इट फॉर यू, यू आर द पर्सन हु कैन डू इट फॉर यू। ओके, सो और हाँ, इस समय ऐसा होता है कि मोटिवेशन बहुत ज़्यादा गिरता है। सो कीप इन माइंड दैट या मोटिवेट बहुत ज़्यादा रहना है, डिप्रेस नहीं होना है या कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, ओवर थिंक नहीं करना है, बट एकदम मेहनत करना है। हो ना हो टेस्ट में वो अदर मैटर है, पर अगर आप मेहनत ही ना करो और अभी से ही सोचो कि यार अब तो 1 ही महीना मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, या कर पाऊंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन डू, अपना बेस्ट दो, उसके बाद होता है या नहीं होता वो बात की बात है। एट लास्ट 6 मंथ करेंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड प्रिपेयर इट फॉर इट। एंड लास्ट 3 मंथ का तो मैं ये बोलूंगी कि डोंट मिस वन डे ऑल्सो। हर दिन का देखो, अगर यू हैव मिस देन ट्राई टू मैनेज इट। हर दिन का, लास्ट 3 मंथ का तो हर दिन का देखो, एंड लास्ट 6 मंथ का भी पढ़ो, और बाकी का यू कैन सी द मेन टॉपिक्स, बट लास्ट 6 मंथ का बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट 3 मंथ का तो मैं बोलूंगी बिल्कुल ही मत छोड़ के जाना। ओके, नाउ लेट्स कम टू द अदर सेक्शन, दैट इज अ क्वांट सेक्शन। सो आई थिंक कि क्वांट सेक्शन बहुत ही लोगों का वीक होता है, एंड इंक्लूडिंग मी, दैट मेरा भी बहुत वीक था। एंड आई रिमेंबर दैट आई प्रिपेयर वेरी हार्ड फॉर इट। मीन्स जस्ट कि बस पास हो जाना है, ऐसा वाला सोच के। ऐसा तो ये उतना हार्ड नहीं होता है, रियली इट इज़ अ बेसिक मैथ्स टिल अप टू क्लास 10th। सो अगर आपको प्रिपेयर करना है तो ये आपको बहुत सारी वीडियो में मिल जाएगा कि क्या क्या सेक्शंस आते हैं टेस्ट के लिए। मैंने भी एक वीडियो बनाया था कि क्या क्या आता है। सो यू कैन सी दैट, आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और फिर मैं वही बोलूँगी कि गो एंड सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि आपको पता चले कि एटलीस्ट पहले कि क्या क्या आता है, तब ना आप उस हिसाब से प्रिपेयर करोगे, बिकॉज आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है एंड यू आर हैविंग ओनली 1 मंथ एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट ऑल। ओके, सो पहले आप चूज करो दैट ये अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वांट मेरे से हो जाएगा तब तो अच्छा बात है। एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट ये बहुत हार्ड है और नहीं हो पाएगा, देन ऐसा करो कि कुछ कुछ चैप्टर्स सेलेक्ट करो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। ओके, इस सब से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वैसा करके करो कि हमसे क्या हो पाएगा और क्या नहीं हो पाएगा अभी। एंड एटलीस्ट सॉल्व 3-4 चैप्टर्स और 5 चैप्टर्स की, एटलीस्ट की मैथ्स आपसे कुछ तो हो जाए क्वांट सेक्शन। ओके, एंड आई थिंक रीजनिंग इज रियली इजी एंड यू कैन डू इट। यू कैन टेक एनी रीजनिंग बुक एंड यू कैन मीन्स प्रिपेयर द रीजनिंग पार्ट। ओके, तो ये क्वांट सेक्शन हो गया। मैं क्या करती थी क्वांट सेक्शन में, अगर कुछ डाउट होता था तो यूट्यूब से देख लेती थी, बट ऐसे मैं ज़्यादा रीजनिंग प्रैक्टिस करके गई थी, बिकॉज आई थिंक कि मेरा रीजनिंग ज़्यादा अच्छा था मैथ्स से। सो मैं रीजनिंग ज़्यादा प्रैक्टिस करके गई थी। मीन्स फॉर द सेक्शन ऑफ द क्वांट आई विल से द सेम, दैट यू कैन टेक द हेल्प ऑफ यूट्यूब एंड यू कैन यूज द बुक्स। if you are a little prepared or if you know how to solve it, you can directly use the book. And if you don't know that how to solve the reasonings and math, then you can take the help of the YouTubes. There are many YouTube channels that will simplify you or that will make simple that how to solve that reasoning and quant. So if you don't know how to solve, then you can go and take the help of the YouTube. Otherwise you can directly solve from the book. So I will tell that yes, you can't cover everything as only 1 month is left. So I will tell you that कुछ कुछ चीज पे ज्यादा फोकस करो और जो करो उसको अच्छे से करो।
वो मैं बोलूंगी। और फिर ये बोलूंगी कि पहले ये जानने के लिए तुमको क्या आता है क्या नहीं आता है, यू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड देन इन एडिशन टू दैट यू कैन ऑल्सो सॉल्व द मॉक पेपर्स. You can purchase that, you can find it in the Google, or you can also purchase that mock paper from the YouTube channels. जैसे बहुत कोई उसे सेल करते हैं, लाइक द स्टडी बज हो गए, देन टिसनेट प्रिपरेशन हो गया, प्रेप हो गया. So you can purchase it and you can then solve the mocks. After giving the mocks means you will build a confidence that yes you can solve it. तो मॉक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं या ज्यादा मार्क्स आ रहा है वो मैटर नहीं कर रहा, पर मॉक्स देने से से कम आपका माइंड प्रिपेयर कर लेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कब सॉल्व करना है, कितना टाइम लेना है. द मॉक्स विल प्रिपेयर यू फॉर द एग्जाम, इसलिए लोग मॉक देते हैं. सो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि यस आप उसे परचेस कर ले और उसे सॉल्व करें. और मॉक देने के बाद ना आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा गिर भी सकता है कि अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको लगेगा कि यार आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, बट ऐसा कुछ नहीं है. मॉक के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हार्ड आते हैं एज कम्पेयर टू द मेन एग्जामिनेशन. और अगर आप मॉक दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को पूरा प्रिपेयर करें एग्जाम के लिए. और आप मार्क्स पे मत ध्यान दीजिए, बट आप मॉक देते रहिए सो दैट कि आपका इधर प्रिपरेशन चल रहा है तो आप कितने पानी में या कितना आपको आता है ये आपका क्लियर हो जाए वो मॉक दे के. Now coming to the English part, so I will say you that in the English part, it is the part in which you can score more and more because ये current affairs का part hard तो आता ही है, quant का part भी medium ठीक ठाक आता है, but the English part is the one you can score more. और मेरे में ये था कि मेरा इंग्लिश पार्ट ठीक था तो वो अच्छा गया था. पर ये ऐसा भी होता है कि इंग्लिश पार्ट बहुत लोग का अच्छा नहीं होता है, जैसे कि वर्नाकुलर मीडियम से जो आते हैं या इंग्लिश मीडियम से भी जो आते हैं, बहुत लोगों को इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डर लगता है और इंग्लिश अच्छा नहीं होता है. और ये भी समझ में नहीं आता कि इंग्लिश में पढ़े क्या. ठीक है, लाइक ग्रामर में इतना कुछ है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो क्या पढ़ना है. ठीक है, तो वही फिर से वही बात कि आप पहले देखिए कि क्या आता है क्या नहीं आता, क्योंकि इडियम एंड फ्रेजेस कभी आता है कभी नहीं आता है. फिर उस हिसाब से आपको कितना आता है उसमें और क्या नहीं आता है, फिर उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो. और इसमें भी आप यूट्यूब का हेल्प ले सकते हो, बुक्स का. मेनली आपको इसमें रीडिंग अच्छा करना, आपकी इंग्लिश, क्योंकि आपका ऐसा है कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन आएगा तो आपको उसमें कम से कम टाइम लेना है. और आपका इंग्लिश अच्छा नहीं हुआ देन यू विल टेक मोर टाइम. ठीक है, तो आपको अपना रीडिंग अच्छा करना है, रीडिंग हैबिट अच्छा करना है कि इफ यू रीड वन लाइन, इतना कि आप तुरंत एक लाइन पढ़े तो आपको तुरंत उतना समझ आना चाहिए. ये एक महीना में तो हम ये नहीं बोलेंगे कि यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश अगर आपको कुछ नहीं आता है तो. बट इंग्लिश इज अ थिंग दैट इट इज नॉट दैट कि आपको अपना इंग्लिश अच्छा करना है बिकॉज ओनली टू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टिसनेट, बट इन द प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो और फॉर द टिसनेट इंटरव्यू ऑल्सो यू हैव टू डू योर इंग्लिश गुड. और ऐसा है कि मीन्स अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है देन डोंट थिंक दैट कि हाँ मेरे तो टिसनेट निकल ही जाएगा क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है. यस, कम्युनिकेशन इज अ प्लस पॉइंट, यू हैव अ प्लस पॉइंट, बट फिर भी आपको अपना ग्रामर इंप्रूव करना है, ग्रामर में प्रैक्टिस करना होगा, रीडिंग कम्प्रीहेंशन की रीडिंग्स करनी होगी. Communication is one thing in English, but that practice writing part and the reading part is the other thing. So दोनों को strong करके रखना है. तो ये एक महीना में तो तुरंत नहीं हो सकता, but then also you can try your best. और बाकी तो सब सजेस्ट करते ही हैं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें. और ये सब जो सजेशन होता है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं अरे देख लेते बहुत कुछ, जैसे आप लोग अभी भी मेरा वीडियो देखते होंगे तो आप लोग सुन लेंगे, बट दैट इज द थिंग कि हम लोग बस सुन लेते हैं, हम लोग कुछ करते नहीं है. बट अगर हम लोग करेंगे वो भी डेली वे में, आपको तुरंत तो आउटकम या रिजल्ट नहीं मिलेगा ना. तो अगर यू विल प्रैक्टिस डेली देन वो आप खुद फील करेंगे कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो रही है. मेनी पीपल विल सजेस्ट दैट मीन्स प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर देन योर इंग्लिश कम्युनिकेशन विल इम्प्रूव. एंड ओनली वी हियर दैट थिंग्स, वी डोंट फॉलो इट, बट इफ वी विल फॉलो देन we will analyze or we will feel that yes really a improvement is coming. I will tell you that now you are seeing my video, you can see someone's other video, okay, but that will not help you. You have to make it out for yourself, like you have to practice. You ऐसे तो आप बहुत सारे वीडियो देख लेंगे but यू हैव टू प्रैक्टिस. और अब बस एक ही महीना बाकी है तो अब तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है. तो मैं पहले बोलूँगी कि आप अगर लास्ट 6 महीने से करते या लास्ट 3 मंथ से भी ये तैयारी करते देन 1 आवर तीनों सेक्शन को देने से हो जाता.
अभी भी अगर हो जाएगा, अगर आप अच्छे से कंसंट्रेटेड माइंड से पूरे 1 घंटे आप उसको देते हैं तो, बट नाउ मैं ये बोलूंगी कि गिव 2 2 hours फॉर दैट। तो आप 6 घंटे एक दिन में, अगर आप 6 घंटे भी अभी पढ़ते हो, क्योंकि आप पहले नहीं पढ़े हो, बात ये है, तो अगर आप अभी एक दिन में 6 घंटे भी पढ़ते हो, या एटलीस्ट 3 घंटे तो देना ही देना है, उसमें तो सोचना ही नहीं है, पर 6 घंटे अगर आप अच्छे से दे देते हो उसमें, और जिस हिसाब से आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन और अच्छा हो सकता है वो आप करिए। और मुझे जो लगा कि मैंने जो किया था, या क्या कर सकते हैं कि कम से कम इस 1 महीने में चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, तो वो मैंने बताया है। बट मैं ये बोलूँगी कि डोंट ओनली वॉच वीडियोस, स्टार्ट डूइंग दैट। ओके, ये मेन है कि स्टार्ट डूइंग दैट। और अगर आप करोगे ना, फिर आपको मजा आने लगेगा, आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा, आपको पहले पढ़ने बैठने का मन नहीं करेगा, बट वंस यू विल सिट एंड वंस यू विल डू दिस थिंग्स, एंड तब आपको बहुत मन करेगा, आप करंट अफेयर्स देखना स्टार्ट करेंगे, फिर आप लिंक करेंगे, हाँ परसों ये हुआ था, फिर आज ये हो रहा है, तो वो बहुत मजा आता है। आई हैव मोर टू टेल बट नो, इतना ही बोलूंगी। लेट start your preparation. All the best who are preparing, and who have not yet started also, please don't lose the hope, you can do it. Okay, and all the best to every TISNET aspirants. Please, if you like this video, or these videos on my any videos are helping you a little also, then please like, share and subscribe my channel, and share this to the one who need this. Okay, so if you have any queries, then you can comment below. We will meet in my next video. Till then, bye bye, take care.